यही चैप्टर बोला था ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। Yes, ma'am. सो इसमें हम पहला कॉन्सेप्ट इसका कवर करेंगे, विच इज इंट्रोडक्शन ऑफ एटम एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इस पूरे चैप्टर में आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि एटम्स के बारे में जानेंगे, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस क्या है। So we are going to learn about nature of matter, Dalton's atomic theory, drawbacks of his theory, definition of atom, discovery of electron, proton, and plum pudding model. Oh wow, मुझे तो भूख लग गई। Plum pudding. Okay, so model by J.J. Thomson, J.J. Thomas, Rutherford scattering experiment, Rutherford's atomic model, drawbacks of Rutherford atomic model, Bohr's atomic model, discovery of neutrons. So in the previous class we have studied that everything that has mass and occupies space is matter. ये तो हमने पढ़ा है ना, matter तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, so we know what are matter. So anything which has mass and occupies space has is matter. And this dog is looking very cute, I guess. Okay, so मैटर का जो नेचर है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैटर, देर आर different belief, means in the ancient time there were different beliefs about the nature of matter. So in 6th century BC in India, an Indian philosopher Maharshi Kanada was the first to suggest that the matter is made up of tiny particles which are called अणु. in Hindi we say एटम को बोलते हैं अणु, और मॉलिक्यूल को बोलते हैं परमाणु. परमाणु बम सुना होगा तुमने, Yes, ma'am. एंड एटम बॉम्ब, यू नो, दीज आर लाइक सेम. ठीक है, तो ही सजेस्टेड कि भाई ऐसा है, हर एक मैटर जो है वो अणु और परमाणुओं से मिलके बना है. ठीक है, ओके, सो अणु इज मॉलिक्यूल एंड परमाणु इज एटम. ठीक है, so अणु have an independent exist, smallest particle होता है परमाणु, does not have an independent exist, combines with the other परमाणुs to form bigger अणु, because give me a second, huh? If we talk about the formation of molecule of water, do you know the formation of, okay, so if I talk about, so it is H plus H plus O, ऐसा ही होता ना. So means these are, they do not have independence exist. And why they are not, they do not have independent exist, do you know? चलो मैं बता देती हूँ. This is not in your book, but I'll just tell you. So कुछ ऐसा होता है, right? So this is the balanced equation. So why it is happening? So this is an element, or you can say it is a परमाणु. परमाणु है ये. अब नाउ दे आर सेइंग दे डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब you know it is feeling like it has to make bond with other. How? Because if we talk about the atomic number of oxygen, what it will be, पढ़ा है ना हमने, CO2. it's 8 ऑक्सीजन का, है ना. So electronic configuration will be 2 and 6. ये पढ़ा है हमने. निश्चल आपने पढ़ा है तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, अगर नहीं है ये आपको Yes, तो ma'am. फिर पढ़ा है. यस मैम, आपने पढ़ाया था पहले चैप्टर में. रियली? ओके, तो फिर तो आता है. चलो, तो अब क्या करते हैं, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे, बट होने कितने चाहिए? तो 8. 8 होने चाहिए, लेकिन है तो 6, 2 और चाहिए, तो किसी ना किसी से रिएक्ट करेगा. वैसे हाइड्रोजन में एक एक था, तो ये भी अनस्टेबल है क्योंकि 2 होने चाहिए, या तो 8 होने चाहिए, तो इनको भी चाहिए, है ना, तो ये भी रिएक्ट करेंगे. सो इन दिस वे दे आर नॉट इंडिपेंडेंटली स्टेबल, they are not stable, so they will take part in reactions.
अभी क्लियर हो गया ये तुमको, आई गेस? Democritus, the Greek philosopher, called the Parmanu an atom. That comes from the Greek word atomos. So he proposed that, उसने atom नहीं बोला था, he said it is atomos, this. But John Dalton later he said this is not atomos, this is atom. ठीक है? Okay, so it was suggested by John Dalton that all kinds of matter are made up of extremely small particles called atoms, and different types of atom contributes to different types of matter. अब डाल्टन ने थ्योरी दी. So what is the theory of Dalton's? According to him, all matter is made up of small and invisible particles called atom. Atoms, तो ये तो पहला इसका पार्ट था. सेकंड पार्ट था atoms can neither be created nor be destroyed. अब उसने बोला एक तो इनविजिबल पार्टिकल से मिलके हर मैटर बना हुआ है, बहुत छोटे हैं, और ये इतने छोटे हैं कि ना हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है? तो एटम ऑफ सम एलिमेंट्स आर अलाइक एंड हैव द सेम मास. ठीक है? सो कार्बन क्या होता है, ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके एटम्स का जो है मास सेम ही होता है. ठीक है? जैसे कार्बन इज एन एलिमेंट मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स एंड कॉपर इज एन एलिमेंट मेड अप ऑफ कॉपर एटम्स. As the element, it is a substance which is made up of only one type of atoms. ठीक है? Okay. So अब यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो कि कार्बन का एटम एक ही कार्बन एटम से मिलके बना है. कार्बन जो है, कार्बन जो है, if we talk about C, carbon, so it is made up of one carbon atom. ओके जैसे हाइड्रोजन बना होता है टू हाइड्रोजन एटम से मिलके ना, वैसे कार्बन इज मेड अप ऑफ वन एटम. एज द सेम कॉपर इज आल्सो मेड अप ऑफ वन एटम. ये क्लियर हुआ? निशल्या, कोई भी डाउट होगा बेटा पूछना कि मैम ये ऐसा है तो ऐसा. तुम पूछते नहीं हो क्वेश्चन. पता है मुझे कब मजा आता है जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम अच्छा मैम तो वो तो ऐसा होता है, ऐसे पूछना. ठीक है? और मैं तो कह रही हूँ ऐसे क्वेश्चंस पूछो कि मुझे फील हो कि मुझको केमिस्ट्री नहीं आ रही. मैं तो ऐसी करती थी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड व्हेन आई वाज इन 10th. तो यू नो मैं बहुत शरारती थी. शरारत मींस मैं कभी कुछ तोड़फोड़ नहीं करती थी, बट आई ऑलवेज प्रिपेयर माय चैप्टर बिफोर. एंड ना मैं कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके ले आती थी अपने टीचर से पूछने के लिए. बट मेरे टीचर तो टीचर थे भाई, वो तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन बता देते थे मुझे अच्छे से. लेकिन क्लास में बहुत मजा आता था, मतलब सब देखते थे कि क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं. उस क्लास में बहुत मजा आता है जिस क्लास में ऐसे इंटरेक्शन होता है. ठीक है? ओके सो हम वापस आ जाते हैं. यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा इमेज लग रहा है, देखिए क्या है, देखते हैं. सो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड 2:1. ये मैंने शायद से आपको पहले भी पढ़ाया है कि इट इज कंपल्सरी for a water molecule to contain 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So हर एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए कंपल्शन है कि ये प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होना चाहिए हर एक मॉलिक्यूल में. अगर नहीं है, OH है, तो OH विल बी वन आयन, क्योंकि अनस्टेबल होगा. ये अनस्टेबल क्यों होगा? क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा भाई. 6 और 7 एक और जरूरी है. So it is compulsory for a water molecule to contain 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम. और इस रेशियो को लिखा हमने 2:1, मतलब 2:1. ठीक है? तो दिस इज अ कंपाउंड. एंड व्हाट इज अ कंपाउंड? Compound is the group of elements. Yes, compound you can say a group of element or the substance which is made up of 2 or more types of element are called compound. Compound. Okay. So atoms are the smallest unit of matter that can take part in a chemical reaction.
मैंने बताया था ना एटम्स ही करते हैं बिकॉज दे आर हाईली यू नो अनस्टेबल। अब जॉन डॉल्टन ने अपनी वो तो बता दी भाई, थ्योरी दे दी, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम is visible, atoms are invisible, right? And this was proved wrong as an atom can be subdivided into subatomic particle, है ना। उन्होंने तो बोल दिया कि इनविजिबल पार्टिकल से मिलके बनी है हर चीज, लेकिन लेटर क्या हुआ, उन एटम्स को देखा गया, उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखे गए, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं किसी एटम में? According to Dalton's atomic theory, atoms of the same element are alike and have the same mass. He also said one thing, that atom of the same element are alike. कि किसी एक एलिमेंट में जो एटम होते हैं वो एक जैसे होते हैं and have same mass, और same mass होता है. This was also proved wrong as atoms of the same element can somehow differ from each other. ये जानने के लिए हमें पहले वाले से अटैच होना पड़ेगा। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि व्हाट आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ओके। सो एटम, just a minute, I'll just change this here. Yeah, oh wow. So atoms consist of subatomic particles that are, okay, that is why they are made up of charged particles. So we can say atom is made up of charged particles, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। J.J. Thomson showed the existence of these charged particles. J.J. Thomson ने क्या बोला कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये होते हैं, and discovered negatively charged particle named as electron. Electron, and electron has negative charge, one negative charge. A German scientist E. Goldstein discovered positive charge particles in an atom which is proton. So proton होता है और वो positive charge होता है. Then James Chadwick discovered neutrons that are neutral. वो रहे ये. Okay, so electrons, protons and neutrons are called the fundamental particle of an element, and these particles are the building blocks of the atom of an element. अब एटम का डेफिनेशन क्या है? सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द सेम एलिमेंट. एग्जाम्पल, ग्राइंड अ पीस ऑफ कॉपर इनटू स्मॉल पीसेस. अब हम क्या करें, कॉपर को स्मॉल पीसेस में ग्राइंड कर ले रहे हैं. ऑल द स्मॉल पीसेस शोज द सेम प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर. तो छोटे से छोटा जो पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, वो सेम वैसी प्रॉपर्टी शो करेगा ना जैसे बड़े वाले कॉपर की थी. Okay, then they say again grind them. Further they break up into very fine pieces. Still प्रॉपर्टी सेम रहेगी, कॉपर की प्रॉपर्टी रहेगी. एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे सब डिवीजन जो है इम्पॉसिबल रहेगा, लेकिन वहां पे भी क्या होगा, प्रॉपर्टी सेम रहेगी, और वो स्टेज जो होगी वो एटम्स की होगी वहां पे, यानी कि वो एटम्स में कन्वर्ट हो चुके हैं. ठीक है, नाउ the unit used to describe the mass of an atom is AMU. It is atomic mass unit. Okay, so the full form of AMU is atomic mass unit. इसमें हम किसी भी एटम का मास बता सकते हैं. AMU stands for atomic mass unit, and 1 AMU is equals to 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. ठीक है. अच्छा, तो अगर मैं बोलूं कि किसी एटम पे चार्ज है 4, तो क्या करोगे, कैसे उसका यूनिट में कैसे लिखोगे? उसको देखेंगे अभी हम, उसमें बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे कैसे निकालेंगे. ठीक है,
So we have studied that electron, proton and neutron are called the fundamental particles of atom. So let's know to understand how these fundamental particles are discovered. अब ये इनको discovered कैसे किया? अब इलेक्ट्रॉन को कैसे ये डिस्कवर हुआ? ठीक है, गिव मी अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड. हाँ, सो यू नो व्हाट आई वाज टेलिंग यू एक्चुअली. अभी मैं ऐसे पूछूंगी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, तो मुश्किल हो जाता है लर्न करना ना. सो यू नो इन माय स्कूल टाइम माय टीचर टोल्ड मी वन फ्रेज, यू कैन से काइंड ऑफ. तो ब्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रिक. आई विल अनम्यूट यू पीपल. हाँ, अब बताओ ब्रिक को क्या कहते हैं? ईट शायद. Yes. So they said it is eat पर नाच. सो उन्होंने कहा बस ये लर्न कर लो तो तुम्हें आ जाएगा. तो हमने पूछा कैसे आ जाएगा? सो ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन. और टी से थॉमसन. ठीक है. पी से प से प्रोटॉन एंड र से रदरफोर्ड, क्योंकि प्रोटॉन का जो इन्वेंशन है वो रदरफोर्ड को रेफर किया जाता है. ठीक है. एंड न्यूट्रॉन ये जेम्स चैडविक ने किया था. सो इट इज ईट पर नाच, और वो रिमेंबर भी हो गया था. और अक्सर ये आता है कि हु इन्वेंटेड, हु डिस्कवर्ड दीज. सो आई थिंक यू कैन लर्न इट. सो एक बार बता सकते हो क्या मुझे ऐसे कि क्या किसने क्या किया होगा? अच्छा बताओ, प्रोटॉन किसने किया होगा? रदरफोर्ड. या. एंड इलेक्ट्रॉन? J.J. Thomson. J.J. Thomson. एंड न्यूट्रॉन? Chadwick. या जेम्स चैडविक. ठीक है. सो इस तरह से यू कैन लर्न. एंड यू इन केमिस्ट्री आई थिंक वी ऑल मेक सम एक्रोनिम्स टू लर्न थिंग, क्योंकि बहुत लंबी लंबी चीजें हो जाती हैं. तो ऑलवेज ट्राई टू मेक एक्रोनिम्स फॉर देम. ओके. सो हम आ गए हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो अ ब्रिटिश साइंटिस्ट विलियम क्रूक noted when a high voltage is applied to very low pressure, the gas which are ordinary non-conducting मतलब उसमें क्या कंडक्ट नहीं हो रहा है? it cannot conduct the you can say pressure more, आगे बहुत नहीं कर सकती, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कर सकती है. so non conduct that gas was the non-conductor of electricity became good conductor of electricity. okay, so ये ऐसा कह रहा है कि एक हाई वोल्टेज ट्यूब थी, उसमें प्रेशर अगर हम लगाएंगे तो जो नॉन कंडक्टिंग गैस है वो भी गुड कंडक्टर बन जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की. एंड चार्ज पार्टिकल बिगन टू फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन द फॉर्म ऑफ रेज. ये इन्होंने थ्योरी दी अपनी. अब ऐसी थ्योरी इन्होंने क्यों दी? एज द रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट. अच्छा, कैथोड और एनोड का भी है. कैथोड क्या होता है? नाम कैथोड, नाम नेगेटिव, नाम पॉजिटिव टर्मिनल प्लेट. और एनोड? नेगेटिव टर्मिनल. अल्फिया, Yes, ma'am. कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? Positive. और एनोड पे? Negative. ठीक है. सो यही तो कह रहा है, बिगन टू फ्लो कैथोड टू एनोड, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज जा रहा है. ठीक है. फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट दैट इज कैथोड एंड ट्रेवल टुवर्ड्स एनोड, दे आर कॉल्ड कैथोड रेज. सही हो रहा है? अभी तो तुमने बोला कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है. तो रेज ओरिजिनेट फ्रॉम नेगेटिव प्लेट जो कि कैथोड है से ट्रेवल करता है एनोड की तरफ. यानी कि कुछ गड़बड़ हो गया ना अभी यहाँ पे तुम्हारी थ्योरी के अकॉर्डिंग. ये कह रहा है नेगेटिव प्लेट जो है वो कैथोड है, यानी कैथोड पर कौन सा चार्ज हुआ? नेगेटिव. पैनकेक मैंने तुम्हें ही बताया था क्या?
यस मैम। तो पैनकेक से याद नहीं हुआ तुम्हें? तो अभी समझ आ गया? ओके, सो दे आर कॉल्ड कैथोड रेज। ठीक है, ओके। Later, J.J. Thomson conducted the experiment in which he used a tube known as discharge tube or cathode ray tube. मतलब क्वेश्चन इस पे बेस्ड भी आएगा कि डिस्चार्ज ट्यूब को और क्या बोलते हैं, उसको कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कैथोड रेज। सो इसने क्या किया, जे जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक ट्यूब का यूज किया, ठीक है, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं और कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। क्या जानने के लिए? स्टडी करने के लिए कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है उसमें। अ डिस्चार्ज ट्यूब इज अ हार्ड ग्लास, ठीक है, इज अ हार्ड ग्लास fitted with two metal plates, fitted with two metals plate। अब एक कैथोड है, एक एनोड है। सो कैथोड को हमने किससे जोड़ा हुआ है? नेगेटिव से, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और एनोड को हमने जोड़ा है पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना। तो इसकी तरफ जो आएंगे वो क्या होगी, कैसी रे होगी? नेगेटिव रे चलकर आएगी पॉजिटिव रे तक, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, नाउ मेटल प्लेट आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स। अब ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, और इलेक्ट्रोड क्या होता है पता है? कुछ नहीं होती हैं वो रॉड्स, ऐसी रॉड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, बस वो होते हैं इलेक्ट्रोड्स। एन इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड द एनोड, और ये कैथोड मैंने आपको बता दिया। द अदर इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इट हैज अ साइड ट्यूब, ओके, थ्रू विच गैस कैन बी पम्प्ड। अब एक इससे जुड़ी हुई एक वो होती है ट्यूब, जिससे कि क्या होता है, गैस पंप होता है, ऑफ यूजिंग अ वैक्यूम पंप टू क्रिएट अ वैक्यूम। वैक्यूम सबको पता है ना, जहां एयर नहीं होती। सो when the high voltage of 10,000 volts is passed through the gas at very low pressure, तो बहुत लो प्रेशर के साथ हम क्या करते हैं, 10,000 वोल्ट का प्रेशर इसमें लगा रहे हैं। सो कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड, तब कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट था। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड आर इन स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं, ठीक है। द रेज कॉज अ ग्रीनिश येलो फ्लोरोसेंट इन अ सोडा ग्लास स्क्रीन प्लेटेड इन ट्यूब, मतलब जो कलर है वो कैसा था, फ्लोरोसेंट का। दीज रेज आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चारों तरफ का एरिया, जहां पे कहीं कोई इलेक्ट्रिसिटी है उसके आसपास का एरिया जो भी अफेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दे आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव फील्ड। अब वो रेस क्या कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्टेड हो रही थी, और जहां पे नेगेटिव फील्ड है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, वहां पे ज्यादा अफेक्ट नहीं दिखा रही थी। दिस शोज दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकाला कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड पे जो भी मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन होंगे, और क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। इस केस में, ठीक है।
अब कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या होती है? सो व्हेन अ बीम ऑफ कैथोड रे फॉल्स अपॉन हार्ड मेटेलिक टारगेट्स लाइक टंगस्टन, एक्सरे आर प्रोड्यूस। मतलब जब भी कैथोड रेज को क्या होता है, किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट पे या स्क्रीन पे डालते हैं हम, तो कौन सी रेज प्रोड्यूस होती है? एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। यानी अगर मैं पूछूं कैथोड रेज कहां पर यूज किया जाता है कैथोड रे को, तो क्या बता सकते हो? यहां से देख के बता सकते हो? You are on mute. You can open your mute and then can, yeah. एक्सरे मशीन में, Yeah, एक्सरे मशीन में। They penetrate through matter. ये मैटर में जा सकती हैं। They cause ionization of gas through which they pass. इलेक्ट्रोलिसिस सुना है? इलेक्ट्रोलिसिस सुना होगा। सो आयोनाइजेशन होता है जब कोई सोल्यूशन या कोई गैस अपने आयंस में ब्रेक हो जाए। और आयंस में ब्रेक कैसे होगा? या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, या फिर दोनों एक साथ। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.108 इंटू 10⁻⁻31 kgs। ठीक है, और यू कैन से 1/1837 द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन एटम का कितना मास होता है? 1.008 समथिंग, उसका 1/1837 जितना भी होगा वो पार्ट इज दिस। ठीक है, ओके। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इट कैरीज अ यूनिट नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अब यहाँ पे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि अब मैं कैसे याद करूंगा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, और चार्ज मैं कैसे याद करूंगी अब कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। जब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे बार बार तो हमें याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, एंड इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.108 इंटू 10⁻⁻31 kg। नाउ एटम्स आर फाउंड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब ये कह रहे हैं कि जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। सो देयर मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज दैट इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल हो जा रहे हैं, है ना। दिस रियलाइजेशन led to the discovery of positively charged subatomic particles called protons. So a German scientist E. Goldstein discovered positively charged particle in an atom that are proton. He used the same apparatus used to produce cathode rays. So same apparatus use किया उन्होंने, and noticed that a discharge tube there were another set of rays. तो अभी तो हमने देखा था कि एक ही तरह की रेस जा रही है, लेकिन उन्होंने देखा कि एक और तरह की रेस जा रही हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। ठीक है, सो वो कौन सी रेस हो गई? इट वॉज सीन व्हेन cathode rays were produced and traveled through the gas in the discharge tube. While doing so, they ionized the gas, that is they took electron from the gas, leaving behind positively charged particle of gas, and they formed the canal rays. So देखो, मतलब ऐसे तो जा ही रही है रेज, ये कुछ रेज ना पीछे भी जा रही थी, ऐसा हो रहा था कुछ। ठीक है, so these rays are called canal rays. Since these rays are passed through holes, जिसमें प्लेट में स्मॉल होल्स हैं उनसे निकल के जा रही थी, and name as positive rays or anode rays. So इनको पॉजिटिव रेज बोला गया और एनोड रेज बोला गया, क्योंकि एनोड क्या है हमारा? पॉजिटिव है। ठीक है, ओके। सो ऑब्जर्वेशन क्या थी? सो दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये तो वो भी जा रही थी कैथोड रेज, है ना। दीज रेज प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, ये तो वो भी कर रही थी।
लेकिन यहाँ पे एक चीज स्पेशल है कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, वहां पे नेगेटिव चार्ज था, राइट, और एंड एज दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे क्या हो रहा था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट हो रही थी, राइट, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रही है फील्ड, बट इन अ डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू दैट दी कैथोड रेज। सो कैथोड रेज अगर ऐसे चल रही है, सो वो ऐसे चल रही है अपोजिट, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, that anode rays consist of positively charged particle that are called proton. अब एनोड रेस की कुछ प्रॉपर्टीज थी, तो अब क्या प्रॉपर्टीज थी कि ये जो रेस थी जिनको हम एनोड रेस कह रहे हैं, दे कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट मटेरियल पार्टिकल्स एंड हैन प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल इफेक्ट। सो इनमें जो हमने देखा एनोड रेस में बहुत ही छोटे से मटेरियल के पार्टिकल्स मिल रहे थे जब वो उस होल में से निकल के जा रही थी, जिनसे मैकेनिकल इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। देयर चार्ज टू मास रेशियो डिफर फ्रॉम द गैस टू गैस। अब उनका जो मास है वो गैस टू गैस डिपेंड करता है, जो भी गैस उसमें वैक्यूम में है तो उसको जितने प्रेशर से हम कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कौन सी गैस है, एंड इट्स वैल्यू इज मच लेसर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब उससे जितने इलेक्ट्रॉनिक जो रे हमारी जा रही है, जो कैथोड रे जा रही है, उससे इसका क्या होगा, वैल्यू कम होगी, ठीक है। और मैक्सिमम कब होगी, जब गैस लेंगे हम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस के साथ एनोड रेस की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, बाकी सबके साथ इलेक्ट्रॉन से कम होगी। प्रोटॉन की कुछ प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन का मास है 1.627 into 10 to the power minus 24 and it is the it mass is same as that of the hydrogen. So हाइड्रोजन के बराबर प्रोटॉन का मास है हाइड्रोजन का जितना है, ठीक है। प्रोटॉन पर चार्ज आप देख सकते हैं 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम्स, और इलेक्ट्रॉन पे कितना था, सेम था, बस माइनस लग जाएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ जे थॉमसन प्रपोज द पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम after the discovery of electron and proton. So let's also know about it. So he said that an atom is a positively charged sphere in which electrons are present at a certain place like plum in a pudding. So खाने की बात करी इसने बोला जो पुडिंग बनाते हैं, जब हम पुलम पुडिंग बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं, पुलम के पीसेस ना उसमें पुडिंग में अलग अलग मिलते हैं हमें, तो वैसे ही हमें एक एटम में पॉजिटिवली चार्ज, ये एक स्फेयर है पूरा एटम, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ऐसे बिखरे हुए मिलते हैं हमें, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे घूम रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं समझ लो, ठीक है। तो he said these charges are embedded in it, इसके अंदर ही चार्ज है ये, the total positive charge is equal to the total negative charge, so that an atom as a whole is electrically neutral, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या था, it could not explain the distribution of charges and stability of the atom. In order to understand the structure of an atom, Rutherford conducted an experiment named alpha particle and scattering experiment. And what he said, देखो ये apparatus में क्या उन्होंने, the apparatus is shown below. For this experiment he selected a gold foil, ठीक है, and passed alpha rays through it. अब अल्फा रेज भी कुछ होती हैं, ठीक है, अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज कंसिस्टिंग ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, तो हीलियम की गैस है, अल्फा पार्टिकल्स उनसे निकलते हैं, ठीक है।
when he direct a stream of alpha particles towards a very thin gold foil. अब जब इसने इस गोल्ड फॉइल से क्या किया, रेस को निकाला, तो क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द रेज पास्ड स्ट्रेट, बहुत सारी रेज तो स्ट्रेट निकल गई, सम रेज वर डिफ्लेक्टेड बाय वेरी चार्ज और स्मॉल एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दिखा भी रखा है इन्होंने, कुछ तो सीधी निकल गई, कुछ ऐसे ऐसी सी चार्ज के उसमें बट गए, और सम रेज कंप्लीटली बाउंस बैक, और कुछ रेज थी जो वापस आ गई अपने आप, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या निकला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। एम्प्टी है तभी तो वो घूम के वापस आ रही है ना, कि कुछ तो सीधे चली जा रही है तो कुछ ऐसे मुड़ के आ रही है, तो दे नीड स्पेस, मींस एटम जो है वो एम्प्टी स्पेस है, तभी उसमें इलेक्ट्रॉन हमें दूर दूर मिलता है। देयर इज समथिंग इन द सेंटर। अब उसने बोला जो रेस जा रही है ना वो सेंटर में से पास नहीं हो पा रही हैं, साइड साइड से चली जा रही हैं, ठीक है। सो सेंटर में कुछ है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला, एंड उन्होंने बोला जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका क्या मतलब हुआ, वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किस पे था, प्रोटॉन पे था, राइट। सो यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। Later, Rutherford generalized the result of alpha particles scattering experiment and suggested a model of an atom that is known as Rutherford atomic model. अब वो क्या था, ऐसा था, वो ये था, तो उन्होंने यही बोला था कि इसमें फ्री स्पेस होता है, बस ना ये जो रेज है वो यहां से नहीं जा पा रही हैं, ठीक है। हम तो एक डाउट है, हाँ हाँ बताओ, हम उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया था, गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया था, शायद वो गोल्ड फॉइल के उससे देखना चाह रहे थे एटम्स में कि कैसा होता है, बिकॉज दैट इज प्योर सब्सटेंस, है ना। गोल्ड हो सकता है वो कोई और भी ले सकते थे, एंड क्योंकि गोल्ड मेटल भी है, सो वो कंडक्ट हर चीजों का अच्छे से करेगा ना, इसलिए अच्छा रिफ्लेक्टर है, मेटल है, तो बहुत सारी चीजें और ऊपर से प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। ओके, तो अब वापस आ जाते हैं इस पे, उस पे उन्होंने यही बोला था कि सेंटर से नहीं जा रहा है, ठीक है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, the nucleus is in the center and the size is very small as compared to the size of atom. Outside the nucleus electrons revolve around the planet, revolve around the sun. ये वैसे है जैसे हम तो पढ़ चुके हैं ना ये चीज कि एटम में फ्रीली घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और बीच में न्यूक्लियस है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक निकला है, ठीक है। The comparison of electron with planet in the solar system is the main drawback of this atomic model. क्योंकि क्या होता है, ये जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं ये एक अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं, है ना, बट दे सेड इसके साथ ऐसा नहीं है, ये इनके ऑर्बिट अलग ही चल रहे हैं, बिल्कुल घटते बढ़ते रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट थ्योरी, व्हेन दे चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कंटिन्यूअसली इन अ सर्कुलर पाथ, दे एमिट्स एनर्जी। अब जब ये ऐसे घूमते हैं ना, सो कुछ एनर्जी एमिट करते हैं, एंड एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन आर also charged particle, negatively charged particle revolving around nucleus, so they should also radiate energy, ठीक है। यानी अपनी एनर्जी को लॉस भी करेंगे, जब एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो एनर्जी लॉस भी होगी, ठीक है। एज द रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली पुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। सो क्या होता है, ये ऐसे ऐसे तो घूमते रहते हैं बट न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ पुल करता रहता है, ठीक है। एंड द एंड अप कॉइलिंग, तो कॉइल की तरह एंड होता है ये, एंड दिस शुड रिजल्ट इन अ टोटल कोलैप्स ऑफ द एटम। यानी अगर मैं सन की बात करूं तो सन तो ऐसे होता है भाई, ये रहा सन और सबका फिक्स्ड ऑर्बिट है, ऐसे ऐसे कंप्लीट ऑर्बिट है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें कॉइल की तरह हो रहा है, ठीक है। सो फॉर दिस केस द एटम विल बी highly unstable and the matter would not exist. However, this model does not happen. Rutherford model failed to express the stability of an atom later, which was very well explained by Danish physicist Niels Bohr in 1913. अब इन्होंने क्या बोला, he said that electron revolving around the nucleus
आर कन्फर्म टू सर्टेन फिक्स ऑर्बिट कॉल्ड शेल्स। तो हमने शेल्स के बारे में पढ़ा है, इसको ये शेल्स बोल रहे हैं, ठीक है। एंड ही सेड दैट ईच शेल हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब ये यहां से ऐसे चलेगा तो जैसे इस वाले ऑर्बिट में आएगा ना, ये अपनी एनर्जी खो देगा, ठीक है। तो इसमें रहने के लिए उसके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, पर अगर उसको यहां रहना है तो यहां के लिए दूसरा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा। सो बोर कॉल्ड दिस दीज ऑर्बिट्स आर we can consider as energy levels, right? And for convenience these energy levels are labeled as KLMN, so it is KLMN भी है, ठीक है। सो ये तो हमको पता ही है कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, and they required least amount of energy, so K shell requires the least amount of energy, and next वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं L shell में, okay. So while revolving around the nucleus in an orbit, electron neither lose or gain energy. एक सेकंड ना, हाँ, इन्होंने बोला ये कॉइल शेप नहीं है, इन्होंने बोले ये ऑर्बिट्स ही हैं, लेकिन हर एक ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है। तो इस ऑर्बिट की एनर्जी है सिर्फ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इस ऑर्बिट की एनर्जी है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन को फिक्स कर सकता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑन गेनिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जम्प्स टू द नेक्स्ट ऑर्बिट। अब यहाँ पे जैसे 9 होंगे ना, तो ये 80 को रख सकता है, तो एक को ये बाहर वाली शेल में फेंक देगा, ठीक है, और तब तक फेंकता रहेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी, फिर जैसी वो कंप्लीट हो जाएगी वो आगे वाली शेल में फेंक देगा। So it proves that an atom contains electron and proton and that the atomic mass of the electron is negligible. On the basis of the mass of helium atom which contains 2 protons should be 2 into 1 AMU, which is 2 AMU. But the atomic mass of the helium atom is found to be 4 AMU. तो एटॉमिक मास और इसमें डिफरेंस होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन में और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में, सो वही चीज ये बताना चाह रहे हैं। सो दिस कंफ्यूजन लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ अनदर पार्टिकल व्हिच मस्ट बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड पार्टिकल शुड बी possess an electrical charge and must be equal to the mass of the proton. तो यहां से न्यूट्रॉन निकल के आया, तो मतलब देखो धीरे धीरे चीजें निकल के आई कि पहले इलेक्ट्रॉन निकल के आया, फिर रेज निकल के आई, पता चला कि नहीं भाई कुछ और भी होता है, प्रोटॉन भी होता है भाई। अब प्रोटॉन भी पता चल गया कि जितना प्रोटॉन होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अब ये पता चला कि एक और चीज है न्यूक्लियस में जो कि थोड़ी सी भारी है, यानी एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास भारी है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एटॉमिक मास होता है न्यूक्लियस का वेट, और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ। सो इन 1932 Chadwick discovered these particles by bombarding light nuclei like beryllium with alpha particles. ठीक है, तो ये इक्वेशन उनकी रही और इससे उन्हें पता चला कि न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बेरिलियम पे हीलियम गैस को फायर किया होगा, तो उनको क्या मिला? ये मिला और ये मिला, तो जो ये चीज है वो न्यूट्रॉन है। ठीक है, सो न्यूट्रॉन का मास तो कुछ सेम ही है, और चार्ज की बात करें तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है और किसी से भी अफेक्ट और डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो चार्ज ही नहीं है, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ भी होता रहे। अब अगर हम कंपेयर करने चले कि जो डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी है वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से कैसे अलग है, तो इसमें क्या था कि एटॉमिक एटम्स आर, इन्होंने बोला था इनविजिबल है, लेकिन उन्होंने बोला था नहीं इनविजिबल नहीं है भाई, है ना, उनको हम डिविजिबल हैं और वो 3 होते हैं। ठीक है, लेटर पता चला कि उसमें डाल्टन ने बोला था कि इनविजिबल एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उन्होंने बोला कि उसकी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एटम्स को हम बना नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, बट इन्होंने क्या बोला
कि एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बाय न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, तो वो कन्वर्ट किस में हो गए, रेज में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल द रेस्पेक्ट, इन्होंने ये बोला था, बट दे सेड द एटम्स of an element may not be like in all the respect. So there are some questions. Name some subatomic particles who have the charge of +1. Proton. Okay. And who has -1? Electron. Okay. And what about this? Neutron. Okay. So neutron तो है, लेकिन इसको हम न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं न्यूक्लियस नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके, सो अब मुझे अल्फिसा देंगे आंसर। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स? Electrons, J.J. Thomson, proton, Chadwick, the proton, Rutherford, neutron, Chadwick. Yes. Okay, so what is an alpha particle? ये तो मैंने पढ़ाया है, अभी बताया था कि क्या होता है अल्फा पार्टिकल। हाँ, निश्चय तुम बताओगे? चलो देख लेते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स consist of 2 protons and 2 neutrons bound together into a particle identical to the helium-4 nucleus. So tell me what we have learned today.